Good morning, students. On the last turn, we had started the linkage and recombination. We repeat this one and we'll do other concepts too. Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex linked. Sex linked means the gene for that particular trait is present on the sex chromosome, that is the X. XY, there are the two sex chromosomes. Morgan hybridized yellow bodied white eyed females to brown body या ग्रे बॉडी जिसे कहते हैं and red eyed males and intercrossed their F1 progeny. He observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1. मतलब कायदे से होना चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता उनके बीच में रिकॉम्बिनेंट्स बनते तो हमें F2 रेशियो जो मिलता वो 9:3:3:1 मिलता, लेकिन ऐसा उनको नहीं हुआ, टोटली डिफरेंट टाइप का मिला उनको. Morgan and his group saw that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type. Morgan coined the term linkage to describe the physical association of genes on the chromosome and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination. Means जो पेरेंट जैसे हम लोगों ने जो लिया था ना, अगर उसी तरह का प्रोजेनिस मिलती तो लिंकेज है, और अगर नया कॉम्बिनेशन मिल जाता तो वो रिकॉम्बिनेशन है. Morgan and his group found that even when genes were grouped on the same chromosomes, some genes were very tightly linked, showed very low recombination. मीन्स उनके बीच में क्रॉसओवर बहुत कम होता है, कहीं एक आध, while others were loosely linked, that means they showed the recombination. For example, he found that the genes white eye color and yellow body color were very tightly linked and showed only 1.3% recombination frequency. That means out of 1000 केवल 13 ऐसे सैंपल्स मिले, केसेस मिले जिसमें वो रिकॉम्बिनेशन हुआ था, अदरवाइज बाकियों में नहीं हुआ था. इसका मतलब उसमें इतने पास पास थे कि वो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं पाए और वो लिंक्ड रहे. While white eye and the miniature wing showed 37.2% recombination frequency. अब इसमें 1000 में कितने होंगे, आउट ऑफ 1000 देयर आर 372 केसेस वेयर क्रॉसओवर हैपन टू अकर. तो ये लूजली लिंक्ड है लेकिन लूजली उतना लिंक्ड नहीं है जितना कि पहले वाला. अब उस दिन हम लोगों ने डायग्राम देखा था ना, डायग्राम से देख कर वॉच करके देखो ध्यान से कि क्रॉस ए क्रॉस बी, तो क्रॉस ए में केवल 1.3 रिकॉम्बिनेंट्स मिले, जबकि दूसरे क्रॉस में 37.2 मिले. ये कायदे से ये रेशियो होना चाहिए था 50-50% रिकॉम्बिनेंट, मतलब 50% वो टाइप का 50% वो टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. There are, now we come to the polygenic inheritance. There are the traits, unlike the Mendelian traits, show gradient phenotypes, hence genotypes. Means मेंडल में या तो टॉल या तो डॉर्फ या तो राउंड या तो रिंकल ऐसे ही था, आइदर और का सवाल था. बट देर आर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, देर आर सच इंस्टेंसेस वेयर ए नंबर ऑफ ग्रेडियंट आर सीन. मीन्स बीच बीच के बहुत सारे और फिनोटाइप्स देखने को मिलते हैं.
For example, the human height, human skin color, cob length of maize, etc., where you will notice a number of gradients. Such traits are controlled by 3 or more genes and thus called polygenic traits. Besides, they also depend on the environment. Environmental factor भी कुछ count करता वहाँ पर, but genes are the main. We come to the human skin color. This trait is controlled by 3 dominant alleles, capital A, capital B and capital C. The homozygotes, capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, will be darkest in skin color. उनका skin color क्या होगा? black होगा, Z black. Whereas small a, small a, small b, small b, small c will be fairest, very light, rather lightest skin color. The individuals with genotype capital A small a, capital B small b, capital C small c will be of intermediate color, will be of the intermediate color. So, in this manner, the number of each type of alleles in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin color in an individual. Means हो सकता है ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि कैपिटल ए हो, कैपिटल बी स्मॉल बी हो, फिर कैपिटल सी हो. मीन्स बहुत सारे इसमें रिकॉम्बिनेंस मिलते हैं. आपको 64 टाइप के शेड्स मिलेंगे, स्किन शेड्स मिलेंगे. एक्चुअली 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे और 8 जा 64, जिसमें डार्केस्ट से लेकर के लाइटेस्ट स्किन कलर और फिर बीच में इंटरमीडिएट कलर. नाउ वी कम टू द अनदर phenomenon, that is the pleiotropy. In this, a single gene exhibit multiple phenotypic expression. Such gene is called pleiotropic gene. मतलब एक से अधिक फिनोटाइप को ये कंट्रोल करते, गवर्न करते हैं. An example of this is the disease phenylketonuria, which occurs in human. phenylketonuria एक बीमारी है, phenylketonuria बोलते हैं उसे. This disease is caused by mutation in the gene. एक सिंगल जीन म्यूटेशन का है एग्जाम्पल है. दैट कोड्स फॉर द एंजाइम, वो जीन नॉर्मल जीन नॉर्मल एंजाइम को कोड करता है. वो एंजाइम है फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज. फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज. दिस मैनिफेस्ट itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and reduction in hair and skin pigmentation. मतलब कई देखो ट्रेट्स हो गए. मतलब एक तो मेंटली रिटार्डेड होगा, वो शरीर पे बाल कम होंगे और स्किन पे पिगमेंट्स टाइप के दिखेंगे. नाउ वी कम टू द सेक्स डिटर्मिनेशन. The mechanism of sex determination has always been a puzzle before the geneticists. Henking 1891 could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in few insects. कुछ इंसेक्ट्स पे उन्होंने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 50% स्पर्मेटोजोआ में एक छोटी सी बॉडी दिखलाई पड़ती है और 50% स्पर्मेटोजोआ में वो नहीं होता. तो मेंडल कुड नॉट नो मच अबाउट दैट. तो सॉरी, हैंकिंग कुड नॉट नो मच अबाउट दैट. हेंस द टर्म एक्स बॉडी वॉज गिवन बाई हिम. इससे ज़्यादा वो बहुत कुछ वो नहीं देख पाए. लेकिन हाँ, इतना जरूर देखा कि 50% स्पर्म्स में वो एक्स बॉडी है और 50% में वो एक्स बॉडी नहीं है. बाद में देखा गया कि वही एक्स क्रोमोजोम है. जब माइक्रोस्कोपी थोड़ी और एडवांस हो गई तो जानकारी हुई कि दैट इज़ द किसी में 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोजोम होते हैं और 50% क्रोमोजोम में एक्स क्रोमोजोम एब्सेंट होते हैं. सेक्स क्रोमोजोम वो हैं
जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोम्स। ये क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ऑटोसोम्स को हम लोग ए से दिखाते हैं और सेक्स क्रोमोसोम को XX या XY या X0 जैसे कंडीशन हो, या कहीं कहीं और भी टर्म्स यूज़ किया, लेटर्स यूज़ किया था, Z है, W है, ये सब भी। तो एक तरह का जो डिटर्मिनेशन है वो देखें हम लोग। यहाँ पर दो तरह के ऑब्जर्वेंसेस होते हैं, मेल हेट्रोगेमी एंड फीमेल हेट्रोगेमी। मेल हेट्रोगेमी मतलब मेल जो है दो तरह के स्पर्म बनाते हैं, और फीमेल हेट्रोगेमी में फीमेल दो तरह के ओवा बनाती है। तो मेल हेट्रोगेमी में भी फर्दर दो तरह का हुआ। एक जैसे ह्यूमन वगैरह में होता है, ह्यूमन में है, ड्रोसोफिला में है XX या XY टाइप, मीन्स फीमेल में XX होता है और मेल में XY टाइप होता है। और दूसरे जो ग्रासोपर टाइप में होता है क्या, XX एंड X0 टाइप। अगर XX है तो फीमेल होगी, X0 अगर है तो मेल होगा। और इसी तरह से फीमेल हेट्रोगेमी में ZZ ZW, जो मेल होगा वो या तो एक ही तरह का स्पर्मेटोजोआ बनाएगा, सब में ZZZ, और जो फीमेल होगी वो 50% होगा Z टाइप, 50% W टाइप। या किसी में फीमेल में या तो Z होगा और किसी में Z एब्सेंट होगा। ये फिगर में, स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कैसे है। ड्रोसोफिला और ह्यूमन में ये फीमेल होमोगेमी और मेल हेट्रोगेमी होती है, जबकि कॉक वगैरह में, बहुत सारे बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमेटिक है और मेल होमोगेमेटिक है। मेल एक ही तरह का स्पर्म बनाता है, जबकि फीमेल दो तरह के ओवा बनाती है। XX एंड XY टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन, male have X and Y chromosomes along with the autosomes, and females have a pair of X chromosomes only along with autosomes. Many insects and mammals show this type of sex determination. तो यहाँ पर there are the 50% chance of the male progeny, 50% chance of the female progeny. ये आपने देख लिया इससे कैसे बना। और X0 टाइप में, अब यहाँ पर जैसे ग्रोसोपर टाइप में होता है कि अगर एक कॉपी X की एब्सेंट है तो वो मेल होगा, अगर दो कॉपी है तो वो फीमेल होगा। और ZW टाइप में क्या होता है, यहाँ पर चूँकि मेल ZZ होगा और फीमेल में क्या आएगा Z और W, क्योंकि फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है, दो तरह के ओवा बनाएगी। अगर Z टाइप का ओवा है तो स्पर्मेटोजोआ से मिलकर के ZZ कॉम्बिनेशन बनाएगा, वो मेल होगा। और अगर W टाइप ओवा है तो Z से मिलकर के, स्पर्म से मिलकर के ZW कॉम्बिनेशन बनाएगा, जो फीमेल होगी। और Z0 और ZZ, जैसे कभी आपने हम लोग X0 देखा था, वैसे Z0 होता है। यहाँ पर एक में Z एब्सेंट होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन XY टाइप में। और एक दूसरे तरह के हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन आते हैं जिसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। इट इज ऑब्जर्व्ड इन हनी बी। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स कितने सेट क्रोमोसोम हैं इंडिविजुअल में, वो डिसाइड करेगा। So it depends on the number of sets of chromosomes an individual receives. The queen, female and workers are formed by the union of a sperm and an ovum, whereas the males, जो drones होते हैं, are formed directly from the unfertilized ovum. drones जो होते हैं, मेल होते हैं, डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ओवम से बन जाते हैं। Thus male have only one set of chromosomes, that is a 16 in number. 16 नंबर होता है उनका, n जो होता है उनका 16 होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली ओवम से बने, अनफर्टिलाइज्ड ओवम से, तो ओवम में 16, तो उनकी बॉडी में भी 16 होगा। एंड द फीमेल हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 32 हो गई, 32।
अब इनका जो स्पर्म बनता है वो होता है माइटोसिस के द्वारा, जबकि फीमेल का ओवम, इसमें बाय द वे स्पर्म छप गया है, मेक इट ओवम, फीमेल जो ओवम बनाती है बाय मियोसिस। स्पर्म माइटोसिस से और ओवम मियोसिस से। ओवम मियोसिस से क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिप्लॉइड नंबर है 32 नंबर है, और स्पर्म माइटोसिस से क्यों? क्योंकि वो हैप्लॉइड नंबर 16 है, n number. Another very interesting thing it is observed here. Males do not have father and thus cannot have sons, but have grandfather and can have grandsons. मतलब फादर नहीं है तो बेटे भी नहीं होंगे, लेकिन उनके पास ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन्स होते हैं। कैसे? देखो इसमें आगे क्रॉसिंग दिखाई जा रही है। पेरेंट्स हैं, अब देखो फीमेल 32 और मेल में 16, तो मेल जो गैमेट्स बनाएंगे माइटोसिस के द्वारा और फीमेल गैमेट्स बनाएंगे मियोसिस के द्वारा। फिर फर्दर रैंडम फ्यूजन होगा, और अगर फ्यूजन हुआ तो फीमेल बनेगा, दोनों फ्यूज करके बनाए तो फीमेल बनाएगा, और अगर डायरेक्टली बना तो मेल बनेगा। ये जो हम लोग देखते हैं हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का डिटर्मिनेशन, ये हनी बीज वगैरह में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कल फिर देखेंगे।